Okay, so let's take a question. um, आ गया भाई क्वेश्चन मेरा। हम्म, अरे भैया इतना परेशान मत करो भाई मुझे। हाँ, तो क्या सवाल लिया जाए? आ, 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 प्लेजर की बात हम लोगों ने थोड़ी सी करी थी, थिंकर एंड थॉट, स्लोइंग डाउन, हैबिट्स, डिस्ट्रिक्ट। तो आ, देखो यार, बात ही तो कर रहे हैं, है ना? बात तो उससे क्या कुछ होता है? आई गेस होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। बातों से बहुत कुछ हो जाता है। अगर आप सही बातें लगातार करने लगते हो तो इट shapes your mind. It starts not only shaping your own mind but also others' minds, and especially the future direction of the course of conversations really start taking shape. If certain things are not being talked about, then other certain things are more likely to be talked about, and things like that. तो उसमें बातों का असर तो पड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पड़ता। बट सवाल के लिए जो सवाल सवाल why is there so much narrowness in our lives? Pleasure, narrowness, जिंदगी तबाह है लोगों की। Why is there so much narrowness in our lives and around us? Basically, in us and around us, in us and in others. Why, as a society, we are so narrow? ठीक है? So why is there so much narrowness in our lives and around us? Question obviously narrowness से परेशान है, narrowness से परेशान होना ही चाहिए, है ना? It's uh, it's a good sign that one is not very much happy with the narrow state of affairs in one's life and others. But the thing is, what one will be doing about that, है ना? करेंगे क्या? Uh, why is there so much narrowness in our lives? इमेंसिटी गायब है, परेशान है लोग। डिंग 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 डि डिंग 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 डिंग। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन वैसे तो एक सेंस में मैं ही पूछ रहा हूँ, है ना? कि व्हाई इज देयर सो मच नैरोनेस इन आवर लाइव्स एंड अराउंड अस। बट लेट्स से अगर ये कोई और पूछ रहा हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि और मैं पूछ रहा हूँ, कम से कम 10 या 100 लोग तो और मिल ही जाएंगे मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट में, या फिर मैं भारत के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, मुझे 100 लोग मिल जाएंगे जो मोरलेस इसी तरीके का एक सवाल उठा रहा हूँ, है ना? Why is there so much corruption? Why is there so much violence? Why is there so much polarization, lack of education, lack of jobs, और हजार तरह की समस्याएं हैं हर जिले में ही। ठीक है, सो अगर मान लो वो क्वेश्चन ऐसा उठा है ना, वाई सो द केस, अगर मैं उनसे यही क्वेश्चन, तो आप बताओ जरा ना, मतलब मैं क्यों ही आपको बताऊं, मुझसे ही क्यों पूछ रहे हो? आप बताओ, आपको क्या लगता है क्यों है? क्या है रीजन इसका? Why is it that you are narrow? Why is that you become so angry? Why is that you are also feeling that you're becoming slowly more violent in your lives? है ना? Intolerance and things like that. तो उसका वो क्या जवाब देंगे? Are they living their life very much attentively? Are they not pursuing pleasure? Uh, are they able to observe more and think less? Most likely, I think they are gonna say, no, that is not the case. So नैरोनेस एक सेंस में थिंकिंग से क्रिएट होती है। बहुत ही लंबे समय के बाद मैंने कुछ लिखा यहाँ पे, ऐसा यूजुअली होता नहीं है मेरे जनरल पैटर्न में। सो थिंकिंग व्हेन नॉट पुट इन इट्स प्लेस inevitably gives rise to desires,
gives rise to all kinds of desires, all kinds of desires, including sexual desire, obviously, which for most is the source of great pleasure. That becomes very important when uh, not living a holistic life. When not living a holistic life. Yeah, thinking when not put it in, thinking when not put in its place inevitably gives rise to all kinds of desires, including sexual desire, which for most people is the source of great pleasure. That becomes very important, which becomes very important when not living a holistic life. तो पहली बात तो ये कि थिंकिंग जो है वो हमारी थिंकिंग फ्रेगमेंटेशन को जनरेट करती है ना? थिंकिंग क्रिएट्स फ्रेगमेंटेशन। जब भी आप होलिस्टिक तरीके से नहीं जी रहे हैं, तो फिर प्लेज़र की डिज़ायर बढ़ ही जाती है। प्लेज़र की डिज़ायर बढ़ जाती है, तो उसमें सेक्सुअल प्लेज़र जो है, वो बहुत ज़्यादा ही डीप प्लेज़र देता है। हाँ, तो उस प्रोसेस में क्योंकि थिंकिंग जब अपनी इस जगह पे नहीं रहती है, तो वो नेचुरली डिज़ायर को जनरेट करती है। तो उस प्रोसेस में एज़ सोसाइटी, एज़ इंडिविजुअल्स वी बिकम slave or prone to having fulfilling having sexual pleasure और उस प्रोसेस में तो एक सेंस में बेसिकली ये हुआ कि एज अ सोसाइटी वी आर फेलिंग टू पुट आवर थिंकिंग इन इट्स प्रॉपर प्लेस उस प्रोसेस में हाँ प्लेजर का डिमांड बढ़ ही जाता है उस प्रोसेस में होलिस्टिक लाइफ जीना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है क्योंकि यू ऑलरेडी फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू डील विद प्लेजर एंड थिंग्स लाइक दैट नो बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है बट लेट्स ट्राई टू है ना डू दैट व्हाई इज देयर सो मच नैरोनेस इन आवर लाइफ पीछे ही पड़ गया हूँ मैं तो प्लेजर के व्हाई इज देयर so much narrowness in our lives. Why is so the case? Why is there so much narrowness in our lives? है ना? Why is there so much narrowness in our lives? Mm, short में कहूँ तो because we are chasing pleasure. Because we are chasing pleasure. जिसमें कि we are also chasing sexual pleasure. ठीक है? And we have created or acquired habits of pleasure, including obviously sexual pleasure. ठीक है? अब बात ये आएगी कि अगर प्लेज़र की हमने आदतें डाल ली हैं, है ना? और वी आर चेज़िंग सेक्सुअल प्लेज़र वेदर यू आर है ना? इन मैरिज और नॉट इन मैरिज डज़न्ट मैटर, इट्स द सेम। तो फिर हम करेंगे क्या? है ना? व्हाट टू डू इन सच अ सिचुएशन?
what to do in such a situation? सी देखो, अगर जैसे एक सिस्टम है ना, वहाँ पे आप भी रह रहे हो, सामने वाला भी रह रहा है, थिंग्स लाइक दैट। उस प्रोसेस में अगर सामने वाले की थिंकिंग भी प्रॉपरली उस प्लेस में नहीं है, तो ही विल ट्राई टू फोर्स, यानी विल ट्राई टू पुल योर थिंकिंग आउट ऑफ इट्स प्लेस बेसिकली। अगर नैरो है सिस्टम, तो वो आपकी इमेंसिटी को नैरोनेस की तरफ लाने की कोशिश करेगा, ठीक है, नेचुरली। Ultimately, the only solution is to bring them towards immensity, which is ultimately being committed as a society to pursue excellence, which means making sure that as individuals we are committed to excellence in the first place. उस प्रोसेस में आप पाएंगे कि आपका कम्युनिकेशन जो है उस सिस्टम में लोगों से उस तरीके से हो रहा है ताकि वो ऊपर की तरफ उठे, ठीक है। चलो थोड़ा सा और इस पर टेक लेते हैं। Why is there so much narrowness in our lives? Why is that the case? Why is there so much narrowness in our lives? How we deal with immense individuals, how we respond to immensity. हमारा immensity के प्रति रुझान क्या है ना? As individuals and as society, हम क्या उसकी बहुत पूजा करते हैं? हाँ, क्या immensity हमारा बहुत आइडियल है? नहीं सर, वैसा नहीं है ना? इनफैक्ट मतलब हम इमेंसिटी को, इमेंस लोगों को मोस्टली नीचे लाने की कोशिश करते हैं, है ना? वी हेट देम और वी become angry at them as groups and as individuals, most likely, mostly, most of the time. हर एक की बात नहीं, there are some exceptions, but on larger scale हम बता रहे हैं। So the thing is कि immensity, we do not really value immensity as much. उसका रीजन ये है कि we don't have enough understanding um, about our psychological structure, about the nature of thought. We do not have much psychological education, है ना? We only largely have टेक्निकल एजुकेशन और एक्सटर्नल, जिसको मैं बोलता हूँ टेक्निकल और एक्सटर्नल education, which is basically information, which ultimately even leads to more fragmentation and more distortion, more desire. जितना आपको ज्यादा पता हो कि knowledge ultimately creates desires, knowledge which becomes memory, which becomes ultimately, and when the thought operates on it, becomes desire. So we do not have an understanding of the movement of desire. तो उस प्रोसेस में हम डिजायर से ड्रिवन हो जाते हैं और ऑर्डर छूट जाता है, देन वी बिकम कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिफ्ट्स एंड जेलसी, हेट, एंगर, वायलेंस, हम उन्हीं सबसे डील करते रह जाते हैं। ब्यूटी का कोई सेंस नहीं रहता, लव का कोई सेंस नहीं रहता, है ना? थिंग्स लाइक दैट। सो लार्जली आप ये मानिए कि एक सेंस में ऐसा नहीं है कि नॉलेज होने नहीं चाहिए। हाँ, द थिंग इज की नॉलेज व्हेन गिवन विदाउट साइकोलॉजिकल नॉलेज, है ना, creates a lot of distortion, creates actually gives rise to desires basically, है ना? And those desires ultimately creates tension in relationships.
एंड सो ऑन देन द होल थिंग गोज़ ऑन। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप नॉलेज मत गेन करिए। थिंग इज़ कि alongside that you must also have psychological knowledge as well, which as a society we are not providing, certainly we are not doing that। ठीक है, चलो फिर इस सवाल को देख लेते हैं। थोड़ा-सा पैटर्न तो बदला हुआ है, आई कैन सी इट। इसका मुझे लगता है रीज़न एक ये है, अभी मैं हल्का-सा देख पा रहा हूँ कि देयर इज़ नो सर्टेनिटी एज़ सच कि मैं इस तरीके की ही वीडियो बहुत आराम से कर पाऊँ। इसकी सर्टेनिटी कहीं न कहीं मेरे दिमाग से गायब है कि बहुत आराम से, बहुत है ना, हाँ, तसल्ली से ये काम कर पाऊँ, लोग चाह ही रहे हैं। इट्स लाइक मी, है ना, putting these questions and then ultimately giving its answers out. Even if, even though people do have questions in their mind, but they are either not able to figure it out or uh, ऐसा लग रहा है कि I myself have somehow given up on the whole project or the mission or the belief that I can really pull individuals, huh, from narrowness towards immensity or from sadness to happiness. It seems like that they are so much beaten up that they are not even willing to listen to these things or उस प्रोसेस में, because they are so much beaten up and they are not responding, so मुझे लगता है कि मेरा भी सीन ऐसा हो गया। I am somehow giving up on them as well, because then interacting with dead ultimately makes you dead too। तो आई गेस उस इंटरेक्शन ने कहीं न कहीं मेरे ऊपर असर पड़ा है और वो इस पे दिख रहा है। बट अल्टीमेटली as individuals, as a society, we can't really give up on these things. We can't really give up on the pursuit of excellence or pursuit of immensity. And in that sense, pursuit of immensity is, there is no such thing as pursuit of immensity. There is only understanding of narrowness. In that process, you start becoming immense, start becoming, you start creating order. There is no such thing as pursuit of order. The pursuit ultimately means desire, which is a direction which ultimately creates distortion in terms of rhythm and order. तो उसका असर पड़ रहा है आई गेस, बट वी कांट रियली टोटली गिव अप ऑन दैट। वी कैन टेक अ पॉज, वी कैन वी नीड टू कोर्स करेक्ट इन थिंग्स लाइक दैट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, दैट होल इंटरेक्शन नीड्स टू बी प्रॉपर्ली मैनेज्ड। अब जैसे यूट्यूब के थ्रू मैं इस चीज को कर रहा हूँ, लाइक आई एम क्रिएटिंग दीज वीडियोस, ठीक है, uploading them on YouTube, let's say, but I'm not, but nobody is watching, let's say। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, some are watching but not, there is not enough audience, ठीक है, ऑडियंस फॉर इट। जैसे कि मैं अगर लाइव स्ट्रीम करना चाहूँ इन इस तरीके के सवालों पर, देन नो वन विल कम। ये कुछ आई गेस बढ़िया निकल के आ रहा है। कहीं न कहीं शायद मैं इस चीज़ से थोड़ा-सा दुखी या परेशान हूँ मे बी। और आई मीन इट्स अ प्रॉब्लम एक्चुअली, इट इट नीड्स टू बी आंसर्ड। सो ये नैरोनेस का ही पार्ट है एक सेंस में। तो जो हम लोग डील आउट कर रहे हैं जिस सवाल से कि व्हाई इज देयर सो मच नैरोनेस इन आवर सेल्स एंड इन आवर लाइव्स एंड एज अ सोसाइटी, थिंग्स लाइक दैट, तो ये इसका पार्ट ही है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं बिल्कुल ही अलग से आ रहा है। सो creating this video, uploading them on the YouTube, there is not enough audience for it, है ना। अगर मैं लाइव स्ट्रीम कर भी तो then people will not come, even if they will come they will not discuss these kind of questions, है ना। So that means as society we have got a habit of going on YouTube, uh, or for that matter other platforms or maybe other apps or even other websites,
बट वी do not have but we don't have the habit of going towards immensity as such. ठीक है, and neither digitally and nor I am able to, let's say, create any center for such a thing, such a conversation to take place, even such a conversation to take place in the district itself, district or ward or a state or nation for that matter. There is no physical space as such जहाँ मैं, अगर मैं जैसे मान लो कि मैं कमरा ले लूँ, तो I can say that I know that no one is gonna come, but no one will know that there is a room where, you know, such a thing is happening where they can come as well without advertisement. And even to some extent the same is true for the YouTube as well. तो ऐसा लग रहा है कि I'm not able to uh, create audience for such kind of videos, which ultimately means कि they are watching some other things, है ना? So I'm not able to break their habits. इसका मतलब ऐसा है कि I'm not properly targeting habits. I am not targeting habits properly. ठीक है, और in other sense the same thing goes कि I am not able to, लिख ही लेता हूँ आराम से, I am not able to break my own habits, and society is not able to break their own habits. तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, दिस इज व्हाई देयर इज सो मच नैरोनेस, देयर इज सो मच नैरोनेस। इसका जवाब तो सिंपल हो गया ना एक सेंस में कि आई नीड टू ब्रेक माय ओन हैबिट्स फर्स्ट। इसका मतलब है कि, है ना, स्लो डाउन हुई है, ठीक है, thinker in the thought observation and the creation of the order and things like that. So इसका मतलब क्या ये है कि if I will be able to do that, then will I be able to break other individuals habits in society? अगर ऐसा होगा तो then I will be able to break their narrow habits, and then a place whether digitally or physically can be created. And if that happens, then certainly obviously, है ना, the momentum will take over, and the lack of audience and things will not be the case, and then I will be able to do it on the live stream as well, which right now is not the case. ठीक है, right now live stream पे आने के लिए फिर वो टैरो and things like that, which I certainly don't want to do. So but that is the case because I am not able to break my own habits first. तो ये रीजन है, ठीक है। तो हैबिट्स बनने का मतलब वही है कि हैबिट्स आर रूल्ड बाय एक्शंस, अल्टीमेटली एक्शन डन रिपीटेडली इज हैबिट्स, एंड एक्शन इज गाइडेड बाय डिजायर, डिजायर अल्टीमेटली बाय थिंकिंग, थिंकिंग उसकी सही जगह पे रखने के लिए आपको साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थॉट के बारे में पूरी, उसके मूवमेंट के बारे में पूरी, और उसके बारे में बातचीत हो रही है। तो उस सेंस में आई थिंक वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन, एंड वी शुड बी कंटिन्यूइंग इन दैट डायरेक्शन अभी तक जहाँ तक की बात है, और उस प्रोसेस में धीरे से, जिसको मैं ह्यूमन एक्सपीरियंस बोलता हूँ, है ना, जो कि इनर एंड आउटर दोनों मिला के है। तो इनर की बात तो मैं काफी कर रहा हूँ, आउटर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आउटर की बात आई गेस मैथ्स वगैरह से कुछ हद तक निकलने लगती है, मे बी आई शुड आल्सो स्टार्ट डूइंग दैट एज वेल, दैट विल क्रिएट द प्रॉपर बैलेंस व्हिच राइट नाउ इज नॉट द केस। ठीक है, अब इसमें बिल्कुल बहुत नेचुरली एक संभावना हो जाती है कि यू स्टार्ट डूइंग मैथ मोर एंड यू लीव इनर टोटली। उस प्रोसेस में व्हाट विल हैपन, है ना, कि यू विल फाइंड दैट यू आर डूइंग मैथ्स फॉर प्लेजर, pleasure will enter, distortion will come, and then ultimately you will also lose, you will lose itself on the math itself, and ultimately again you will have to come towards inner, then eliminate pleasure, and then back again to the mathematics, प्रॉपर प्योर है ना, गुड मैथमेटिक्स। तो उस सेंस में हमेशा अच्छा ही रहेगा, बट
दिस फ्लो डज टेक प्लेस, है ना? हैड दैट नॉट बीन द केस, इट वुड हैव नॉट बीन, है ना? द होल डिस्कशन डज नॉट हैव टू बी हियर। तो इस प्रोसेस में आई गेस हम लोग ह्यूमन एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जिसमें कि हम लोग इनर और आउटर दोनों के बारे में ज़्यादा ही बात करने की कोशिश करेंगे। केवल मैथ से काम शायद नहीं चलेगा, बट ठीक है ना? टू स्टार्ट विथ, वन कैन स्टार्ट विद द मैथमेटिक्स एंड देन कैन बिल्ड व्हाटएवर इज नीडेड। इनर को हम लोग ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, ठीक ठाक सॉलिडिफाइड कर चुके हैं अपने शेड्यूल। तो यहाँ से फिर हम लोग अब आउटर को भी लेंगे, ठीक है? तो एक सेंस में ऐसे भी कह सकते हो कि नैरोनेस इसलिए है क्योंकि पहली बात तो वी आर टू मच आउटर, है ना, एंड नो इनर एट ऑल। और है ना, इसका उल्टा भी है कि टू मच इनर एंड नो आउटर एट ऑल। आउटर इनर का बैलेंस नहीं है, जो कि एक सेंस में ईसा उपनिषद का पार्ट भी है। तो आई गेस दिस मच इज नाउ इनफ, है ना? चलो ठीक है।